Hello students, welcome all. I hope you're enjoying your studies. As you all know, we are having term exam. So let's complete with the objectives of partnership final accounts. Starting with the objectives, first question we have is select the most appropriate alternatives from the following and rewrite the sentences. As you all know, here rewrite the sentences is written. So rewrite means you have to rewrite the sentence along with the correct answer. Like in question number 1, let's see. When there is no partnership agreement between partners, the division of profits takes place in dash ratio. Okay. So in OCM, you already have studied about partnership. So you all know about the theory of partnership. You all know what are the considerations when there is no partnership agreement. So when there is no partnership agreement, the profits of the partner is divided in equal ratio, right? So equal is the answer. When you will write the answer, you will write the whole sentence along with the answer and underline it in your exam. Okay. Now moving to the second point, to find out net profit or net loss of the business, dash account is prepared. Okay, so it is very simple. We have to calculate net profit or net loss. So net profit or net loss is calculated in P and L account. This we are studying from 11th standard. So we need not to discuss a lot about this. Next we have a dash is an intangible asset. Intangible means any asset which cannot be seen or touched, right? So here we can have an elimination method also if you don't know. Stock, you can see it and touch it, it is not intangible. Cash, you can touch it and see it, again it's not intangible asset. Furniture, you can see it and touch it, it is also not an intangible asset. So goodwill will be your correct answer. Fourth point, in the absence of an agreement, interest on loan advanced by a partner to the firm is allowed at the rate of how much? 6% is the answer. Okay. Liability of the partners in a partnership business is unlimited. The Indian Partnership Act is in force since 1932. Maximum number of partners in a firm are dash according to Companies Act 2013. So in Companies Act 2013, there was a change in the number of partners, and the latest number of partners, maximum number of partners is 50 partners. Okay. So these are few things you need to remember. इसके लिए हम ट्रिक तो क्या लगा सकते हैं, आप लोग जैसे क्वेश्चन चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो बाय द टाइम यू विल रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स. Moving to the next point. B part we have to solve. Write the word or phrase or term which can substitute each of the following sentences. Means we have to write one word for these sentences. Person who form the partnership firm are called as partners. Next, amount of cash or goods withdrawn by partners from the business from time to time. Okay, if they withdraw something from the business, it is called as drawings. An association of two or more persons, according to Indian Partnership Act 1932, is called as partnership firm. ठीक है? So this firm word is used for association of two or more person according to Indian Partnership Act. ये आप लोग ध्यान रखिए. Generally firm word जब use करते हैं तो वो partnership के लिए use करते हैं. Act under which partnership firm is regulated is, देखिए यहाँ ऊपर ही इसका आंसर हमें दिया हुआ था, Indian Partnership Act 1932. Sometimes it happens कि हमें जो वन मार्क के लिए क्वेश्चन दिए एग्जाम में उसका आंसर हमें कहीं ना कहीं पेपर में ही मिल जाता है,
तो इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, तो जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी आंसर मिल रहा है उससे, बट लॉजिक अपना अपने पास ही रखिए, क्योंकि हमें किसी भी हालत में ये समझ करके ही आंसर लिखना है कि वो करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार। भाई अब रजिस्टर में नाम लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? रजिस्ट्रेशन कहेंगे। ओके, पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म, तो ये आप सभी लोगों ने पढ़ा है। जो एग्रीमेंट होता है रिटन फॉर्म में उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। Under this method, capital balance of partners remain constant. ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कि पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट मींस सेम रहता है, इट डू नॉट चेंज। तो कौन सी मेथड में चेंज नहीं होता है? वैसे देखिए तो पार्टनर्स की कैपिटल कब चेंज होती है? पार्टनर्स की कैपिटल जनरली चेंज होती है जब उन्हें कोई सैलरी मिल रही हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो, या फिर उन्होंने ड्राइंग्स किया हो, या फिर पी एंड एल का प्रॉफिट या फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? तो ये सब वो जनरल चीजें हैं जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को चेंज करते हैं, मतलब कि हम कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री करते हैं, राइट? लेकिन एक केस ऐसा भी होता है जबकि हम पार्टनर्स के दो अकाउंट बनाते हैं। एक अकाउंट वो होता है जिसमें कि कैपिटल फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, और दूसरा अकाउंट होता है जहां पर के कैपिटल चेंज होती है, राइट? तो जो कांस्टेंट मेथड है जहां पर हम लोगों को पार्टनर्स का अमाउंट कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो कौन सी मेथड होती है? तो उसके लिए हम देखते हैं कांस्टेंट का मतलब क्या है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, राइट? यहाँ पर देखिए वी हैव ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर हमने सिर्फ एडिशनल कैपिटल अगर लाई है तो उसे रिकॉर्ड करना है, उसके अलावा कोई भी रिकॉर्डिंग हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं बनाते हैं। वी प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड एवरीथिंग एल्स इज डन इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम लोग कोई भी रेगुलर एंट्रीज नहीं करेंगे, वी विल एंटर ओनली additional capital or capital permanently withdrawn by the partners. Okay, so इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इस मेथड को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड. Why it is called fixed capital method? Because here partners capital is fixed. तो ये बात देखेंगे, ध्यान में रखेंगे. In fixed capital method, two accounts are prepared. One is partners capital account and second is partners current account. While in fluctuating capital method, only one account will be prepared, that is partners capital account. Done? Next question. Portion in which partners share profits is called profit sharing ratio. ये तो बहुत आसान है. Next, such capital method in which only capital account is maintained for each partner. देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट में ड्रॉइंग्स भी कैपिटल अकाउंट में लिखा है, पी एंड एल का अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में ही डाला है. तो हियर ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड वेयर ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर entered, and this is called as fluctuating capital method. Next, the account to which all adjustments are made when capital is fixed. जब कैपिटल फिक्स होती है उस केस में एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट में करते हैं? हमने अभी बात किया है कौन से? वेरी नाइस, पार्टनर्स करंट अकाउंट. वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट, राइट? Expenses which are paid before they are due. Now these are the expenses which are paid before they are due. ड्यू वर्ड का क्या मीनिंग होता है? ड्यू मीन्स हमें अब पेमेंट करने की डेट आ गई है, राइट? आप लोगों ने अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हो या आगे जब भी आपको भी पढ़ेंगे तो उसमें ड्यू वर्ड का आपको मीनिंग समझ में आएगा. ड्यू डेट एक वर्ड आता है, जबकि पैसा देना हमारे लिए कंपल्शन हो जाता है. तो हमारे लिए कंपल्शन होने से पहले अगर हमने पे किया तो वो क्या कहलाता है? हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया. बिफोर टेकिंग सर्विसेज वी हैव मेड पेमेंट, राइट?
So that is called as prepaid expense. The accounts that are prepared at the end of each accounting year are called as final accounts. An asset which can be converted into cash easily. कोई भी asset जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, मतलब कि हमें जब भी कैश की जरूरत है हम तुरंत उसको सेल करके और उससे पैसा निकाल सकते हैं. तो ऐसे असेट को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज करंट असेट और लिक्विड असेट. राइट नाउ दिस इज द वर्ड ऑफ दिस इज द वर्ड लिक्विड. राइट लिक्विड का क्या मतलब होता है? देखिए जैसे ही आप टैप ओपन करते हैं लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्लो. राइट so similarly current assets are that assets which you can quickly sell and get the cash flow out of it. Now let's see which assets are liquid assets. So those assets which can be converted into cash easily are called as liquid asset. These are also called as cash or cash equivalents. Those assets which are either itself cash तो इसमें आएगा, और they are cash equivalent. Cash equivalent किसको कहेंगे? For example, cash is itself there, right? Then we have stock. That is also a kind of liquid asset because we can sell this stock easily. हम इसको सेल करके और जल्दी से जल्दी पैसा पा सकते हैं. Except that if organization is having some excess money, it usually invest it in some shares, debentures, etc. Right? So it can sell those investment and get cash quickly. So these are liquid asset. Except this, other current assets are also called as liquid assets, such as debtors, bills receivables, etc. Moving to the next point, we have order in which fixed asset are recorded first in the balance sheet. अभी ये order का मतलब हम लोग स्विगी से order नहीं कर रहे कुछ भी, right? Order मतलब sequence. Here order means sequence. Sequence in which fixed assets are recorded in balance sheet. तो देखिए हम लोगों ने जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें जनरली वी डू नॉट फॉलो अ सीक्वेंस. हम लोग ऊपर नीचे भी चीजें लिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब बैलेंस शीट बनती है और इफ यू विल सी कंपनीज फाइनल अकाउंट, दे आर हैविंग अ फिक्स्ड फॉर्मेट and in that fixed format they write the assets and liability in a specific order or sequence. तो वो order या sequence क्या कहलाता है? It is called as order of liquidation. Now what is the order of liquidation? Order of liquidation मतलब कि सबसे solid asset जो होगी, जो सबसे लास्ट में हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेल करने को सोचते हैं, वो सबसे सॉलिड एसेट. तो वहां से हम जाएंगे लिक्विड की तरफ. जो और लिक्विड है वो और नेक्स्ट आएगी. आप लोगों को समझ में आएगा इस एग्जाम्पल से. देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस शीट है. राइट इन दिस बैलेंस शीट वी हैव फर्स्ट गुडविल वी हैव. राइट तो फर्म की गुडविल जनरली कब सेल की जाती है? फर्म की गुडविल हम सेल करते हैं जब हम फर्म ही सेल कर रहे हो या बिजनेस ही सेल कर रहे हो या फिर कोई नया पार्टनर आ रहा है या पुराना पार्टनर जा रहा है. इस केस में हम लोग गुडविल के साथ कुछ भी करते हैं. राइट तो एक तो हो गया गुडविल, इट इज अ फिक्स्ड एसेट. इसको हम बहुत ही रेयर केस में सेल या परचेज करते हैं. देन लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी एक सॉलिड एसेट है. सॉलिड क्यों है? क्यों भाई? ये एसेट हम लोग तब सेल करेंगे जब हमारा बिजनेस सच में प्रॉब्लम में होगा. राइट देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी. लैंड एंड बिल्डिंग सेल करने से पहले हम प्लांट एंड मशीनरी सेल करेंगे, तो इट इज मोर लिक्विड देन लैंड एंड बिल्डिंग. देन फर्नीचर एंड फिक्सचर. अगर हमारा बिजनेस मुसीबत में है तो प्लांट एंड मशीनरी सेल कर दिया तो हमारा प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा. तो वो सेल करने से पहले हम फर्नीचर सेल करने के बारे में सोचेंगे. सो फर्नीचर इज मोर लिक्विड देन प्लांट एंड मशीनरी. राइट सो ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन आई होप आपको समझ में आ रहा है. नेक्स्ट वी हैव इक्विपमेंट्स. तो हम फर्नीचर से पहले छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हमारे पास सेल करेंगे. अगर इक्विपमेंट्स सेल करने की नौबत आई और हमारे पास मोटर वैन है तो हम प्रिफर करेंगे कि पहले हम हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो सेल करें. और जो हमारी मोटर वैन का काम है, मान लीजिए अगर ट्रांसपोर्ट का कुछ काम है तो वो हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं. राइट तो ये देखिए
motor van is more liquid than equipments. Then we can have leasehold or freehold premises. तो ये जो leasehold premises है ये लीज पे लिया हुआ है, हमारा अपना पर्सनल नहीं है. तो अगर लीज खत्म होने वाली है तो ये ज्यादा लिक्विड हो सकता है. अदरवाइज अगर हमारे पास बहुत ज्यादा सालों के लिए लीज है तो इट विल कम अलोंग विथ लैंड एंड बिल्डिंग, डिपेंड्स. ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पेटेंट्स. पेटेंट्स आर मोर लिक्विड. तो ये देखिए ये सारी फिक्स्ड एसेट. तो हम जब भी लिखते हैं पहले फिक्स्ड एसेट लिखेंगे. सारी सबसे पहले हमारी क्या आती है, फिक्स्ड एसेट जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे. और उसके बाद जो लिक्विड 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 होती जा रही है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए नीचे के साइड पे सारे की सारी करंट एसेट्स हम लोगों ने रिकॉर्ड की है. राइट. तो आप देखना अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए स्टोर स्पेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारा जो एरिया है ये सारा कुछ जो है इसमें देखिए सबसे लास्ट में कैश इन हैंड आ रहा है. तो कैश इज मोस्ट लिक्विड एंड इट इज रिटन एट द एंड. सिमिलरली अगर आप लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे तो कैपिटल जो है वो सबसे लास्ट में पे ऑफ होती है, और उसके ज्यादा देखेंगे तो हम जनरल रिजर्व पहले डिस्ट्रीब्यूट करते, कैपिटल तो सबसे लास्ट में जाता है. राइट. लोन का पेमेंट हम लोग पहले करना प्रेफर करेंगे, उसके बाद हम लोग कैपिटल का पेमेंट या जनरल रिजर्व देंगे. लोन में भी कैसे होता है, जो मॉर्गेज किया हुआ लोन है मतलब जिसमें हमने एसेट गिरवी रखे वो हम पहले छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और जिसमें हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है इस तरह के लोन्स जो है जैसे लोन फ्रॉम पार्टनर हो गया, तो ये लोन कैसा है, अनसिक्योर्ड लोन है, अगर ये हमने पे ऑफ नहीं किया तो भी चलता है. तो देखिए वी हैव रिटन इट लेटर ऑन. राइट. और ये दोनों जो होते हैं ये सिक्योर्ड लोन होते हैं, ये दोनों जो होते हैं दीज आर सिक्योर्ड. डन. अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिल्स पेबल पे. तो बिल्स पेबल जो है ये और भी ज्यादा लिक्विड है. हमें बिल्स पेबल का पेमेंट और हम लोग क्विकली पेमेंट करते हैं इन लोगों को, और इनकी प्रायोरिटी भी कम होती है. पहले पेमेंट किसको हो रहा है, बिल्स पेबल को. बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप सीक्वेंस देखेंगे तो लिक्विडिटी की, तो इट इज एन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. ओके. नेक्स्ट, the account in which selling expenses of business are recorded. तो selling expenses कौन से होते हैं, indirect expense होते हैं. right. Expenses related to purchase are direct expense, therefore they are recorded in trading account, and expenses related to selling are indirect expense, therefore they are recorded in profit and loss account. आप लोग मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, बिकॉज जैसे मैंने इसका ऑपोजिट बताया तो यहाँ सेलिंग की जगह अगर परचेज लिख करके आ गया तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा. तो ध्यान से सुनिए, मैं ऑपोजिट्स भी काफी सारी चीजों के बता रही हूँ, दैट विल हेल्प यू अलॉट. डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्या होता है भाई. ट्रेडिंग अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल. ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सिंपल. तो नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होगा, ऑफ कोर्स लॉस होगा. राइट. और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस. सो इट विल बी अ ग्रॉस लॉस. आपकी बुक में जो आंसर दिया है तो ये वाला आंसर आपको रॉन्ग दिया हुआ है, प्लीज करेक्ट इट. क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होगा, दिस इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो इट विल बी अ प्रॉफिट एंड इट इज अ नेट प्रॉफिट. डन. Next question, state whether the following statements are true or false with reasons. Reasons I have not written here, but in exam you have to write the reasons also. I will discuss it. You find out the reason in your books and you can write in your notes. Okay. पार्टनरशिप फॉर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. अभी नॉन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो गुड्स को सेल और परचेस नहीं करती हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है. पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, सो इट इज फॉल्स. Profit and loss account is a real account. Oh, we have discussed just only. Profit and loss account is a nominal account. So definitely it is a false
false statement. Carriage inward is carriage on purchase. This is most confusing point. Carriage inward. तो ये carriage inward में in दिख रहा है, in का मतलब होता है अंदर आना. To come inward. तो in से हम लोग समझेंगे कि भाई हमारे पास जो है goods जो है वो आ रहे हैं. तो when goods are coming, that means we are purchasing the goods. तो ये जो in है इससे आप याद रखेंगे, in मतलब कि goods आ रहे हैं. That means we have purchased. It is a carriage on purchases and it will be recorded in trading account, right? So this is a correct answer because carriage inward means carriage on purchases. Next, adjustments are recorded in partner's current account in fixed capital method. This is also again a confusing question. इसको अलग अलग तरीके से कई बार हमारी बुक्स में दिया हुआ है, right? So adjustment जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में. तो भाई फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो यहाँ पर जिसमें ज्यादा लेटर्स है उसमें अकाउंट भी ज्यादा बनते हैं, राइट? तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड इसको कैसे याद रख सकते हैं? फिक्स्ड में ये x है क्या? x है ना. तो x बनाने के लिए कितने लाइंस चाहिए? 2 लाइंस चाहिए, राइट? तो x बनाने के लिए 2 लाइंस चाहिए, तो इससे हम याद रखेंगे कि इसमें कितने अकाउंट बनते हैं? 2 अकाउंट बनते हैं. तो एक फिक्स हमारा कैपिटल अकाउंट बन जाएगा और दूसरा करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बन जाएगा, राइट? तो एडजस्टमेंट जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट में होंगे. आई होप अभी इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हो. फ्लक्चुएटिंग में एल आता है ना, एल, तो एल के लिए क्या होता है? सिंगल. एल के लिए सिंगल ये लगता है ना. तो फ्लक्चुएटिंग में कितने? 1 अकाउंट बनते हैं. दिस वे यू कैन remember this trick. Okay, so therefore this statement is true. Next we have prepaid expenses are treated as liabilities. Okay, so prepaid expense है मतलब कि हम लोगों ने सर्विसेज ले ली है और अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस है मतलब हमने पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी तक सर्विसेज नहीं लिए. तो भाई अब तो हमारा हक बनता है. तो हक बनता है तो हमारी लाइबिलिटी होगी या एसेट होगा? ऑफ कोर्स हमारी एसेट होगी, क्योंकि जब हमारा हक बनता है तो हम लाइबिलिटीज में नहीं होते, हम नीचे के साइड पर नहीं होते हैं. वी आर ऑन द अपर हैंड. इट इज एन असेट. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड मुझे आई होप आपको याद है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है. इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, partners share profit and losses in the proportion of their capital. No, no, no. हमने ये पढ़ा है. They share their profit in equal proportion, right? So this is a false statement. Balance sheet is an account. No, there is no to and by in the balance sheet. Therefore, balance sheet is not an account. It is a statement. So therefore, this statement is false. Next, wages paid for installation of machinery is a revenue expenditure. So if you have paid wages while installation of machinery, so when we have studied depreciation chapter, na, at that time we understood that installation charges of machinery are added to the cost of machinery. Therefore, they are not revenue expenditure, they are capital expenditure. Okay, so I can write here they are capital expenditure. Therefore, this statement is income received in advance is a liability. Okay, if we receive any income in advance, तो पैसा ले लिया है, काम करके देना है, तो now we are on a lower hand. Therefore, this statement is true. RDD is created on daters. RDD का full form अगर आपको याद है तो you can never do this point wrong. RDD means reserve for doubtful debt, and debt word says it is for debtors, not for creditors. Therefore, this statement is false. Depreciation is not calculated on current asset. Oh, is depreciation calculated on current asset?
No, therefore this statement is true. It is always calculated on fixed asset. Goodwill is an intangible asset. Yes, you cannot see goodwill, you cannot touch it, therefore it is an intangible asset. Let's see what is the next question. Find odd one out. Okay, so मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप लोगों ने concepts बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो you can solve these questions. These are not that difficult. Let's see. Wages, okay, salary, then royalty and import duty. Okay, so in सब में common ये है कि all are expenses. What is the difference? What is the difference here? Yes, salary. Salary is an indirect expense. All three are direct expenses. Therefore, salary is the answer. Same year, postage, stationery, advertisement, and purchases. So all these are expenses. Let's see what is the difference. Postage is an indirect expense, stationery and advertisement also, but purchases is a direct expense. It is recorded in trading account. Therefore, correct answer is purchases. Then we have capital, okay, bills receivable, reserve fund, bank overdraft. ये सब भारी भारी वर्ड्स देख करके मुझे बैलेंस शीट की याद आ रही है. ओके, सो कैपिटल लाइबिलिटी है. बिल्स रिसीवेबल लाइबिलिटी है क्या? नो, इट्स एन असेट. तो यहीं पर हमको आंसर मिल गया. सो बिल्स रिसीवेबल इज द ऑड वन आउट बिकॉज ये असेट है. आगे देखते हैं रिजर्व फंड. दिस इज ऑल्सो रिटन इन द लाइबिलिटी साइड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी. सो करेक्ट आंसर इज बिल्स रिसीवेबल. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेबल. तो ये फिर से एसेट लाइबिलिटी आए. देखिए इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों assets हैं. Bills payable is liability. So answer is bills payable. Discount received, dividend received, interest received and depreciation. भाई यहाँ पर तो खुद ही समझ में आ रहा है. तीन चीजें received है. ये वाला receive नहीं हुआ है तो ये expense है. बाकी सारी income है. So depreciation is the answer. So this way we completed 4 questions in this video. In next video, I'm going to discuss the remaining questions. And if you have any doubt regarding this, you know where you have to go. Yes, of course, you have to go to comment section and please do write about the videos, what you liked, what you didn't like, and like, share, subscribe my video. Thank you so much. And of course, press the bell icon.